ایک بہت ہی معتبر نام. اردو کے عالمی منظرنامے میں جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ شخصیت کے کئی پہلو ہیں, کئی زاویوں سے وہ محتاج تعارف نہیں ہے, چاہے وہ شاعری کے حوالے سے ہو, مشاعرے کی نظامت کے حوالے سے ہو, یا ایک تبصرہ نگار ایک مبصر کے حوالے سے ہو. فی الوقت وہ مستقل طریقے سے لکھنؤ میں آباد ہو چکے ہیں, گوشہ نشین ہیں, اور سرکاری اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں کلاس 1 کے افسر سے ریٹائر ہوئے, لیکن ان کے اندر افسریت کی کوئی بوباس نہیں ہے. جس سے بھی ان کے تعلقات ہیں, جس سے بھی مراسم ہیں, وہ چاہے ان سے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو, بڑے ہی دوستانہ تعلقات ان کے رہتے ہیں. 2 شعر میں ان کے کلام مجموعہ کلام ریشن سے پڑھ رہا ہوں, اور اس پہ 1-2 جملے کی گفتگو کے بعد میں انہیں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا. ایک شعر یہ ملاحظہ فرمایا, انہوں نے کہا کہ جو چبھ رہے ہیں میری نظر میں وہ سارے کانٹے گلاب کر دو, جو چبھ رہے ہیں میری نظر میں وہ سارے کانٹے گلاب کر دو, تم اپنے ہونٹوں سے چھو کے دریا کا سارا پانی شراب کر دو. ایک شعر یہ سنیے. پھر دوسرا شعر اسی کتاب کا کہ حویلی بیچ کر 2 بھائی سکے بانٹنے بیٹھے, چلو یہ بھی بزرگوں کی نشانی ختم ہوتی ہے. یہ شعر میں نے اس لیے دونوں شعر کہ دونوں شعر کا پہلو, اس کا پس منظر بالکل الگ ہے. پہلے شعر میں جہاں محبت کی بات کی گئی ہے, ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید محبت کی حسین وادیوں کا مسافر ہے, لیکن ایسا مسافر ہے جو دیوانہ تو ہے, عاشق تو ہے, لیکن اپنے گرد و نواح کے حالات سے بے خبر نہیں ہے. اگر اس کی محبت پہ کی جو باریکیاں ہیں یا اس کی سرمستیاں ہیں, اس پہ اگر اس کی نگاہ ہے تو حالات پہ بھی اس کی بہت گہری نظر ہے. دبستان لکھنؤ کی ایک معتبر آواز, ایک بہت ہی خوبصورت اور لائق احترام شخصیت محترم جناب واصف فاروقی صاحب کی خدمت عالیہ میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. نہیں, اپنا بتایا ہوا جملہ میں خود نہیں بولوں گا. محترمہ سلمہ حجاز صاحبہ کی صدارت میں پہلا اتفاق ہے میرا کچھ شعر سنانے کا. سلمہ صاحبہ سے ایک رشتہ سب سے مضبوط جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ میری بھابھی ہیں, اور بھابھی کا دیور سے کیا تعلق ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی صدارت میں مجھے کتنا فیض ملے گا یا کتنا مجھے فائدہ ہوگا. رضوان بھائی اردو اکیڈمی کے نمائندے کے طور پر تشریف رکھتے ہیں. یہ غفران صاحب کہاں گئے؟ روک کے رکھا کرو انہیں اپنے ساتھ. یہ ہدایت اس لیے ہے کہ تجربہ بتا رہا ہے میرا. بلا وجہ میں بھاگ بھاگ جو باہر جاتے ہیں کوئی چکر نہ ہو, کسی خیال نہیں. غفران قدوائی صاحب اور شائندہ کا یہ اہتمام, ان کی معصومیت مجھے بہت اچھی لگی ان دونوں کی. اور خاص طور پہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے رضوان بھائی, انہوں نے مجھ سے کئی مرتبہ پوچھا, شائندہ نے بھی اور ان کے شوہر نامدار نے بھی, کہ آپ اپنا نذرانہ بتا دیجئے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک کنسیپٹ ہے یہ کہ مشاعرے کا شاعر صرف کاروباری ہوتا ہے, یہ ایک ذہن بنا ہوا ہے لوگوں کا. تو انہوں نے بھی مجھ سے کئی مرتبہ پوچھا کہ نذرانہ بتا دیجئے. تو میں نے کہا کہ آپ جو چاہیے گا, جو سلوک کرنا چاہیے گا کر دیجیے گا. میں حاضر ہوتا ہوں آپ کی محفل میں, میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں ضرور شرکت کروں گا. مجھے یہ فائدہ ہوا ہے آپ کی اس اہتمام میں کہ آپ کے شوہر قدوائی صاحب بارہ بنکی سے ہیں. انہوں نے بارہ بنکی کے 3 شاعروں کو انلسٹ کیا اپنے یہاں. اس کا فیض یہ ملا کہ بارہ بنکی کے اتنے سامعین ہمارے حصے میں آ گئے. تو یہ بہت ہی پازیٹیو ہے. لکھنؤ والوں کے لیے خاص طور پہ یہ کرنا چاہیے کہ یہ سماعتیں جو ہیں بارہ بنکی کی بڑی معتبر اور بڑی زندہ سماعتیں ہیں, یہ سب لوگ جانتے ہیں اچھی طرح. تو ایک اشارہ دیا ہے آپ نے کہ اگر بارہ بنکی کے شاعروں کو لکھنؤ کی محفل میں بلایا جائے گا تو ساتھ میں بہت بہترین سماعتیں بھی تشریف لائیں گی, جس سے مشاعرے کا اور وقار بڑھ جائے گا. تو میں نام کسی کا نہیں لے رہا ہوں, سب میرے بھائی ہیں, سب میرے بھائی ہیں. شعر پڑھتا ہوں. ہاں ایک بات اور, شائندہ آپ میری بیٹی جیسی ہیں اور ظاہر سی بات کی جائے. بہرحال میں پیش شعر پڑھتا ہوں. ارشاد علی.
नहीं नहीं रिजवान भाई, मैं मुस्तकबिल को बहुत जहन में रखता हूँ। अगर खुदा ना खास्ता मैंने इनका ये ऑफर कबूल कर लिया होता तो आप उसे नज़ीर बना लेते। तो वो मुस्तकबिल में बड़ा बहुत नुकसानदेह साबित होता मेरे लिए, इसलिए मैं बहुत दूर तक की सोचते हैं हम लोग। अब साहब कुछ टूटी फूटी सी शायरी सुन लीजिए मेरी भी। चार मिसरे। कितना वक्त देंगे? जी वक्त तो आपके लिए थोड़ी हुई वक्त की क्या। अच्छा मेरे लिए कल ये तो जानते हैं कि मेरा वक्त तो वैसे ही करीब है। अब काहे की इजाजत देनी। तो मेहताब भाई आपने वादा पूरा किया, आप तशरीफ लाए, अच्छा लगा। बहुत से शायर सफ़े सामईन में हैं। मैं पढ़ता हूँ साहब, चार मिसरों से शुरुआत करता हूँ कि जो है जहरीली उसे बादे सबा कहने लगूं। सुनिएगा। जो है जहरीली उसे बादे सबा कहने लगूं। सोची समझी साजिशों को हादसा कहने लगूं। जो है जहरीली उसे बादे सबा कहने लगूं। सोची समझी साजिशों को हादसा कहने लगूं। और कुछ सियासी बुत बहुत बरहम है मुझसे इन दिनों, चाहते ये हैं कि मैं उनको खुदा कहने लगूं। वाह 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 वाह। जो है जहरीली उसे बादे सबा कहने लगूं। क्या लतीफ खूबसूरत तंज़ीह। वाह वाह वाह। सोची समझी साजिशों को हादसा कहने लगूं। वाह वाह। और कुछ सियासी बुत बहुत बरहम है मुझसे इन दिनों, चाहते ये हैं कि मैं उनको खुदा कहने लगूं। चाहते ये हैं कि मैं उनको खुदा कहने लगूं। आइए गुफरान मियां तशरीफ लाएं। आप बता दीजिएगा कि मैंने इनको किस तरह याद किया था, ये भी बता दीजिएगा। हाँ, चाहते ये हैं कि मैं उनको खुदा कहने लगूं। चार मिसरे समाप्त कीजिए हजरात कि दिल को शीशा न कहा जाए कि बाज़र्फ है ये। दिल को शीशा न कहा जाए कि बाज़र्फ है ये। टूट जाता है मगर शोर नहीं करता है। सुनिएगा खास तौर पे कि दिल को शीशा न कहा जाए कि बाज़र्फ है ये। टूट जाता है मगर शोर नहीं करता है। और हादसे मुझको सिखाते हैं हुनर जीने का, कोई सदमा मुझे कमजोर नहीं करता है। हादसे मुझको सिखाते हैं हुनर जीने का, कोई सदमा मुझे कमजोर नहीं करता है। सूरत हाल यह है कि वो जो धरती पर चल नहीं सकता वो भी ऊंची उड़ान सोचता है। वो जो धरती पर चल नहीं सकता वो भी ऊंची उड़ान सोचता है। नियतें सबकी तख्तो ताज पे हैं, कौन हिंदुस्तान सोचता है। वाह 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 वाह। वो जो धरती पर चल नहीं सकता वो भी ऊंची उड़ान सोचता है। और नियतें सबकी तख्तो ताज पे हैं, कौन हिंदुस्तान सोचता है। कौन हिंदुस्तान सोचता है कि वज़ादारी है शिकायत से जो लब डरते हैं। वज़ादारी है शिकायत से जो लब डरते हैं, वरना हम वक्त से डरते थे ना अब डरते हैं। वज़ादारी है शिकायत से जो लब डरते हैं, वरना हम वक्त से डरते थे ना अब डरते हैं। और एक दीवाने पे हर हाथ उठा ले पत्थर, संग दीवाना उठाता है तो सब डरते हैं। एक दीवाने पे हर हाथ उठा ले, एक दीवाने पे हर हाथ उठा ले पत्थर। वज़ादारी है शिकायत से जो लब डरते हैं, वरना हम वक्त से डरते थे ना डरते हैं। वाह वाह। और एक दीवाने पे हर हाथ उठा ले पत्थर, संग दीवाना उठाता है तो सब डरते हैं। संग दीवाना उठाता है तो सब डरते हैं। 3 शेर मुलाजा किए साहब। हालांकि ये बहर एक जावेद अख्तर साहब की बड़ी मशहूर गज़ल मुझे अच्छी लगी थी, तो उसी बहर में मैंने ये शेर कहे हैं। रदीफ थोड़ी सी बदल गई, काफिया बिल्कुल अलग कर लिया मैंने शेर कहे तो 3 से। वाह। आप खासतौर पे सलमान जा कर रहा हूँ, खासतौर पे सुनिएगा शिव। मैं चूंकि सदारत आपकी है इसलिए जिम्मेदारी है कि सिर्फ तमाशे वाली शायरी ना पढ़ी जाए, कुछ अदब भी पेश कर दिया जाए। अर्ज करता हूँ कि ख्वाब देखने वालों, रात की स्याही से सुबह कैसे होती है तुम नहीं समझ सकते। वाह वाह। ख्वाब देखने वालों, रात की स्याही से सुबह कैसे होती है तुम नहीं समझ सकते। ख्वाब देखने वालों, रात की स्याही से सुबह कैसे होती है तुम नहीं समझ सकते। आंख खुश्क होने पर, दर्द के बिछोने पर रूह कैसे रोती है तुम नहीं समझ सकते।
आँख खुश्क होने पर, दर्द के बिछोने पर रूह कैसे रोती है तुम नहीं समझ सकते। और रह गुजारे हस्ती में कहकहों की बस्ती में, तुम हो अपनी मस्ती में और खुद परस्ती में। रह गुजारे हस्ती में कहकहों की बस्ती में, तुम हो अपनी मस्ती में और खुद परस्ती में। बहरे गम से जो निकला, चश्मे नम से जो निकला, अश्क है कि मोती है तुम नहीं समझ सकते। बहरे गम से जो निकला, बहरे गम से जो निकला, गम से जो निकला, अश्क है कि मोती है तुम नहीं समझ सकते। अश्क है कि मोती है तुम नहीं समझ सकते। ये क्या हो गया, बीच में कहाँ चली गई? भाई शाइंदा, आइंदा बात कर लेना, अभी तो मौका है। अपने अफसर के साथ बहुत दिन तक काम करना है अभी। तो हाँ, तो शाइंदा इस तरह के काम आइंदा कीजिए आप। अच्छा, वहां से आप उनको लेकर, ओहो चलिए से अब ठीक नहीं। आज लिफाफों का ताल्लुक रिजवान भाई से नहीं है, अगर होता तो मैं तय कर चुका होता, आज होता। रह गुजारे हस्ती में कहकहों की बस्ती में, तुम हो अपनी मस्ती में और खुद परस्ती में। बहरे गम से जो निकला, चश्मे नम से जो निकला, अश्क है कि मोती है तुम नहीं समझ सकते। आखिरी शेर पेश करता हूं कि तुम हवस का एक सूरज, बरगे गुल के अश्कों से प्यास को बुझाने में कामयाब रहते हो। तुम हवस का एक सूरज, बरगे गुल के अश्कों से प्यास को बुझाने में कामयाब रहते हो। रात अपने दामन में कतरा कतरा शबनम को किस तरह पिरोती है तुम नहीं समझ सकते। रात अपने दामन में कतरा कतरा शबनम को किस तरह पिरोती है तुम नहीं समझ सकते। आँख खुश्क होने पर, दर्द के बिछोने पर रूह कैसे रोती है तुम नहीं समझ सकते। और 3 शेर की ज़हमत और उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। सदर आली वक़ार का कलाम आप तक पहुँचना है। अर्ज़ करता हूँ, ख़ासतौर पर सुनिएगा साहब, कि जो हो गया है खसारा हुआ न समझा जाए। जो हो गया है खसारा हुआ न समझा जाए। जो हो गया है खसारा हुआ न समझा जाए, हमें मुहाज पे हारा हुआ न समझा जाए। जो हो गया है खसारा हुआ न समझा जाए, हमें मुहाज पे हारा हुआ न समझा जाए। और अभी तो उसने दिया ही नहीं वफा का सबूत, अभी तो उसने दिया ही नहीं वफा का सबूत, अभी से उसको हमारा हुआ न समझा जाए। अभी तो उसने दिया ही नहीं वफा का सबूत, अभी से उसको हमारा हुआ न समझा जाए। और शेर पेश करता हूं कि वो शख्स अपनी अना का शिकार है, उसको वो शख्स अपनी अना का शिकार है, उसको गमे हयात का मारा हुआ न समझा जाए। गमे हयात का मारा हुआ न समझा जाए। और तमाम शायरों की तरफ से, आप सब हजरात की जानिब से एक दूसरे को मैं ये शेर नजर करना चाहता हूँ, आपकी तरफ से आपको, आपकी तरफ से आपको। अर्ज करता हूँ आखिरी शेर कि ये वक्त, गफरान मियां, ये वक्त आपकी यादों में हो गया महफूज। ये वक्त आपकी यादों में हो गया महफूज। ये वक्त आपकी यादों में हो गया महफूज, ये वक्त सिर्फ गुजारा हुआ न समझा जाए। ये वक्त आपकी यादों में हो गया महफूज, ये वक्त आपकी यादों में हो गया महफूज, ये वक्त सिर्फ गुजारा हुआ न समझा जाए। जो हो गया है खसारा हुआ न समझा जाए, हमें मुहाज पे हारा हुआ न समझा जाए। बहुत